I am your host Salim bin Mohammad Rafi, and here is my YouTube channel Zamir Universal. It's very hard on me to believe the war criminal, baby killer, and with 200,000 Palestinians in Gaza dead, injured, buried in mass graves, newborn babies, decapitated, completely charred and burnt, with bullets removed from the heads of children, and see the crying orthopedic surgeons who came from all across the world to help in there, and destruction of all the healthcare facilities, all the sewerage, all the habitat, all houses, all streets, all transports, all water, power, anything which the life is required to sustain life. And now with the piles of garbage, the all waterborne diseases, communicable diseases, starvation, dehydration, the hell has been let loose on that by this criminal, war criminal, who I hope God burns into the deepest pits of hell. Now declares this Netanyahu that the war in Gaza has ended today. Now nobody will take his words because he is a cheat. He is the guy who says something and does something else. And he is the one who has committed, I think, the most heinous, the dirtiest. He is, or you multiply it with millions, then one Hitler comes with his name is Netanyahu. That, 70 or 80 years after the death of and the suicide of Adolf Hitler, another Hitler, born somewhere else in Eastern Europe, and comes as a occupier into the sacred land of the prophets, and then with him comes the evil and the Satan. And you can see that in the 4 terms he has been the longest serving prime minister. With settlements, he destroyed single-handedly the peace. No prospect of peace in the West Bank, with multiple settlements, tunnels, barriers, blockades, and see that he has destroyed and flattened the whole of Gaza. So him declaring this, knowing that his death is imminent, the destruction of Israel is imminent by the ballistic missiles of Iran, Hezbollah and Hamas, and the coming out of the tunnels and destroying completely Tel Aviv and their bunker. He is hiding like a rat. Is now that what he is forcing him to do it. But no one is going to believe him. No one is going to believe him or his stepfather, Sleepy Joe Netanyahu, who is a man suffering from dementia and doesn't remember what he says. And his, in the last 11 months, his, ceasefire before the month of Ramadan, the fasting month before Eid, everything he said for hundreds of times has flood on his face. It is like spitting on his own face in the mirror. He has no shame. And American history will have this gentleman as the weakest and the most cunning and the liar and the cheat a president. His presidency will be remembered this. And you can see that one-time president who had to withdraw his own nomination or candidature from president, and now there is no prospect of the Democrats winning again. Unfortunately, the other person who is coming at his place is morally corrupt, and he is another person who nobody wishes that he becomes a president, because he turned into the whole of the Palestinian people into like rabbits and put them into the holes and called it. He has no shame. And you can understand then, multiply Joe Biden with 100 and the Donald Trump, the most corrupt person comes out of it. So there is no hope for this empire, which is a dying empire, this empire. And you see the destruction of America is from within. Nobody from outside has conquered it and broken it. And both these two presidencies, one filth, the other dirt, and you can see what this filth and dirt together has done to the whole world and world peace. And with them put them as a sandwich spread, Bibi Netanyahu, and then you can see who controls the 3 devils. Nothing
जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हिजबुल्लाह की जानिब से मैसिव अटैक हुआ है। पिछले 15 दिनों में यह सबसे बड़ा हमला है जो हिजबुल्लाह की जानिब से कर दिया गया है। बेरूत हमले के बाद यह सबसे बड़े स्केल का हमला है। 100 से ज्यादा रॉकेट्स जो हैं और ड्रोन्स नाज़रीन इजराइल के ऊपर दागे गए हैं। पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया गया है। वो एरियाज जो अभी तक इवैक्यूएटेड नहीं हुए थे उनमें इजरायली सेटलर्स को निशाना बनाया गया है। दर्जनों की तादाद में इजरायली सेटलर्स और इजरायली फौजी जो है वो जख्मी हुए हैं और हलाक हुए हैं। कई एक एरियाज में इस वक्त आग लगी हुई है। नए एरिया से इस वक्त इवैक्यूएशन शुरू हो गई है। एक पैनिक है, खौफ है और भगदड़ है और बहुत बड़ी तादाद में इजरायली जो हैं वो इन कई आबादियों को खाली करके सेंट्रल इजराइल की तरफ इस वक्त हंगामी सतह के ऊपर दौड़ना शुरू हो गए हैं। यानी अटैक हुआ है, इतना मैसिव आग लगी हुई है, धमाके और कैजुअलिटीज, और इसी दरमियान ये हंगामी सतह के ऊपर इजरायली अपना वो मतलब थोड़ा बहुत सामान लेकर हंगामी सतह पर सेंट्रल इजराइल की तरफ उन्होंने फौरी जो है इवैक्यूएशन शुरू कर दी है। तो एक नया महाज पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने एक नई वेव जो है वो पूरी तरह से शुरू कर दी है। इसी दरमियान नाज़रीन गजा से भी बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन की रिपोर्ट सामने आ रही है। एक ऑपरेशन में 11 इजरायली फौजी कम से कम निशाना बने हैं और ये दो तरफा ताबूत पिछले 2 घंटों के अंदर अंदर उठ गए हैं। लेबनान वाली साइड के ऊपर और गजा में हमास का ये भरपूर हमला हुआ है। तो ये अगर हम तमाम कैलकुलेट करें तो जख्मियों और हलाकतों की तादाद जो है वो 70 से 80 के करीब इस वक्त पहुंच रही है। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं जिन लोगों ने फायर किए गए हैं। द आर्मी मॉनिटर्ड द क्रॉसिंग ऑफ 55 मिसाइल्स इनटू इजराइल इन द लास्ट साल्वो लॉन्च फ्रॉम लेबनान। जो आखिरी साल्वो फायर किया गया उसके अंदर 55 मिसाइल थे। जो एक गलीले के ऊपर 40 रॉकेट्स के साथ हमला किया गया और जो आखिरी साल्वो उन्होंने फायर किया उसके अंदर 55 मिसाइल थे। तो 100 तो सिर्फ ये बन रहे हैं, ड्रोन्स और बाकी वो इससे ज्यादा है। तो ये 100 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स बन रहे हैं जो अभी ताज़ा तरीन हमला हुआ है। तो ये 15 दिनों का सबसे बड़ा अटैक इसको कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह हिट्स इजरायली साइट्स ग्रुपिंग्स विद स्वैम ऑफ ड्रोन्स रॉकेट्स। इजरायली बहुत सारी साइट्स को उनकी जो फौजी पोजीशंस हैं उनको रॉकेट्स और स्वैम्स ऑफ ड्रोन्स के साथ जो वो अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह सेज इट रेजिस्टेंस फाइटर्स कैरिड आउट 8 ऑपरेशंस अगेंस्ट इजरायली मिलिट्री साइट्स एंड ट्रूप्स। 8 मेगा ऑपरेशंस इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि उन्होंने इस वक्त ताज़ा तरीन जो है वो सर अंजाम दिए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस विच टारगेटेड अ पोजीशन ऑफ एनिमी सोल्जर्स इन द मर्ज पोजीशन with 2 suicide bombers and inflicted a number of deaths and injuries on them। एक मर्ज साइड के ऊपर हमला किया गया है और नंबर ऑफ इन्फ्लिक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज टू देम। ये अल-मदीन का सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। दर्जनों इजरायली फौजी मारे गए और जख्मी हुए। इन्फ्लिक्ट नंबर ऑफ डेथ्स के हमने उनको बहुत सारों को वहां पर मार दिया। ये एक बहुत बड़ा हमला वो बता रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट ऑफ इंजरीज फ्रॉम रीसेंट रॉकेट्स बैराज फ्रॉम लेबनान। इजरायली मीडिया बता रहा है in the settlements of Margaliot without sirens going off। बड़ा धमाका मार्गलियोट में और जो सायरन्स हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सायरन्स बजते चले जा रहे हैं, बजते चले जा रहे हैं और एक पूरा पैनिक और खौफ और वहां पर एक बना हुआ है। इनिशियल रिपोर्ट्स स्पीक ऑफ इंजरीज टू पीपल इनसाइड अ बिल्डिंग इन रॉकेट बैराज फ्रॉम लेबनान। फिर क्या हुआ है कि एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है जिसमें इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली सेटलर्स मौजूद थे। Israeli media, all rockets in the last heavy barrage from Lebanon on the north fell in areas whose residents not have been evacuated। तमाम जो rockets आए हैं, all the rockets, वो we added the settlement of Eilat Hashar to our fire schedule and bombarded it for the first time with volleys of Katyusha rockets। Eilat Hashar की जो है ना सेटलमेंट, इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि उसको भी हमने अपनी टारगेट लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। ये वो है जिसको अब से पहले हमने निशाना नहीं बनाया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इसको हमने अटैक किया और अब ये भी हमारी लिस्ट के अंदर शामिल होगी, यानी अब ये भी मुसलसल अंडर अटैक आएगी। तो इस तरह आप देखें ना कि जो नए एरियाज को निशाना बनाया गया, ऊपर से हिजबुल्लाह कह रही है कि अब ये हमारी रेंज में आ गई है मुसलसल, अब हम रोजाना इसको निशाना बनाएंगे। तो वहां से हंगामी जो इवैक्यूएशन है, जो भगदड़ है, मतलब लोग थोड़ा थोड़ा सामान लेकर और गाड़ियां लेकर मतलब निकल रहे हैं। जैसे एक हंगामी पता नहीं इधर से सुनामी आ रहा होता है ना, अब बीच के ऊपर बैठे हो तो सुनामी आ जाए तो क्या हालत होती है। तो इजरायली मीडिया 2 इंजर्ड इन एक्सप्लोजन्स ऑफ ड्रोन लॉन्च्ड बाय हिजबुल्लाह टुवर्ड्स रमीम रिज इन द नॉर्थ। अब ये मुख्तलिफ जो सेटलमेंट्स हैं वहां से थोड़ी थोड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं। जो रमीम रिज का एरिया है, यहां से बता रहे हैं कि 2
इंजरीज इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट हो रही हैं। यानी इसमें हम नंबर्स के ऊपर नहीं जाते, नंबर्स हैं वो कितने। द ऑक्यूपेशन आर्मी अनाउंसेस दैट 2 of its soldiers were injured, one of them in critical condition as a result of a drone explosion in मिसगाव in the गलीली फिंगर। इजरायली आर्मी खुद ये कंफर्म कर रही है कि 2 उनके सोल्जर्स जो हैं वो मिसगाव एम का जो इलाका है वहां पर इंजर हुए, जिनमें से एक जो है वो पावर आउटरेज इन हतजोर गलीली आफ्टर रीसेंट शेलिंग फ्रॉम लेबनान। पूरे गलीली के अंदर इस वक्त पावर आउटरेज हो चुकी है, इजराइल अंधेरे के अंदर डूब गया है। तो ये वन ऑफ द वेरी ग्रेट अटैक। इसके अलावा इजरायली मीडिया, अब ये लाइन सुनिएगा, इंपैक्ट जरा देखिएगा जो अभी ताजा तरीन हमला हुआ है। इवैक्यूएशन ऑफ द रेजिडेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द सेटलमेंट्स ऑफ इलात शहार एंड नो एयर असिस्टेंस टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द सेटलमेंट। वो कह रहे हैं कि ये जो इलात शहार की सेटलमेंट है यहां पर हंगामी सतह के ऊपर जो है ना इवैक्यूएशन शुरू हो गई है। यानी 7 अक्टूबर से पहले कि इजराइल था और वो एक हैबत की अलामत समझा जाता था, कोई उसको निशाना बनाने की सोच नहीं, मातम कर रहा है। और इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 11 सोल्जर्स वर इंजर्ड विद वराइंग डिग्रीज ऑफ सेवेरिटी इन अ सिक्योरिटी इंसिडेंट इन गाजा, अदर डिटेल्स आर सब्जेक्ट टू मिलिट्री सेंसरशिप। 11 सोल्जर इजरायली मीडिया के मुताबिक जख्मी हो गए हैं एक ही हमले में 11 इजरायली फौजी हिट हुए हैं, ठीक है। और अदर जो डिटेल्स हैं वो अभी भी सब्जेक्ट टू मिलिट्री सेंसरशिप है, यानी ये नंबर्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और इसमें इजरायली मीडिया की जुबानी, we assume that an attack from Iran और हिजबुल्लाह could occur at any moment। हिजबुल्लाह और ईरान का जो जवाब है वो किसी भी लम्हे आ सकता है, यानी वो इस लेवल के ऊपर बैठे हैं। उनकी असेसमेंट ये है कि जितना ईरान को रोका जा सकता था, जितना हिजबुल्लाह को रोका जा सकता था, और मैं कहता हूं ईरान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हिजबुल्लाह की है। ईरान ने तो एक बतौर स्टेट हमला करना है ना, उसके बहुत सारे मतलब सारी दुनिया के सदूर राब्ता कर रहे हैं, रशिया चाइना के साथ इंगेजमेंट करनी है, उनकी भी उसमें हाँ होनी चाहिए, उनके साथ भी मुशावरत होनी चाहिए, अरबों के साथ इंगेजमेंट करनी है, तो उसके तो बतौर रियासत बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के तो वो चैलेंजेस नहीं है, उनको तो वो सबसे में हमला होगा। गैलेंट कह रहा है द अराइवल ऑफ द यूएस फोर्सेस टू द मिडिल ईस्ट and the military aid packages will make our enemies think twice before any move। लेकिन हमारे पास अमेरिका आ गया है तो जो भी हम पर हमला करेगा उसको जो है ना शदीद तरीन जवाब देखना पड़ेगा। We do not agree with the estimate of reducing the state of alert for Iran and Hezbollah। हम इस चीज पर एग्री नहीं करते कि ठीक है बेशक अमेरिका भी आ गया है तो खराबी होने जा रही है। इजरायली मीडिया की जुबानी देखिए, इजराइल इज नाउ एट अ स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड एंड रिस्किंग द लाइव्स ऑफ प्रिजनर्स एड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रीजनल क्योस। अगर ये वाकईतन जैसे ईरान हमास सारे कह रहे कि ये धोखा था और मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने जा रहे और ये डील नहीं होने जा रही, तो एक तो हमारे प्रिजनर्स वहां पर मारे जाएंगे और दूसरा जो पॉसिबिलिटी ऑफ रीजनल क्योस है वो समझो कि मतलब एक रीजनल जो वॉर है वो छिड़ने जा रही है। द सिक्योरिटी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वार्न्ड दैट blowing up the talks could lead to the chaos and regional escalation। अब वो बेसिकली नेतन्याहू के हवाले से बात कर रहे हैं कि असल जो डील में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ईरान को कि इसराइल और अमेरिका ये जो अभी थोड़ा सा टाइम गेन आपके स्ट्राइक और चीजों में आ रहा है, क्योंकि देखिए चाइना ने ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है ईरान को हमले का। जब चाइना ने बात की कि उनका हक है और पूरी तरह होना चाहिए, और जब रूस ने बात की कि हम भी आजाद फलस्तीन रियासत की तरफ ही जाएंगे, 2 कौमी रियासत की उन्होंने बात ही नहीं की, तो दोनों की जानिब से ग्रीन सिग्नल चला गया। अब हथियार भी चले गए, मिसाइल भी चला गया। अब असल में इजराइल कर ये रहा है अमेरिका के थ्रू और अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्राइक किस नौयत का होगा, कब होगा, हमारी तैयारी क्या होगी, हम उसको रोकने के लिए क्या इकदाम करें। तो ईरान को बड़े वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें मिल गई हैं, पैगाम मिल गए, इसीलिए उन्होंने कह दिया, आज कतर को पैगाम दे दिया, अब हमारी हो चुकी है बस, अब इनफ इज इनफ हो गया और हमने इस सारे मामले पर पीछे नहीं हटा। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप एक चीज पर दाद देंगे नेतन्याहू को। देखें उनकी एस्टैब्लिशमेंट के 2 हिस्से हैं, एक उसके खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करवा रहा है, एक मीडिया को खबरें लीक कर रहा है, और इनकी कैबिनेट में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनके लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वजीरों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्मी चीफ और नेतन्याहू की आपस की लड़ाई हो रही है, वजीर दिफा और नेतन्याहू की आपस की लड़ाई हो रही है। इस सारे लड़ाई करे उसके बावजूद पूरा इसराइल सड़कों पर है, पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ है, लेकिन वो बंदा जंग के लिए टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पीछे बैठी हुई है सारी ताकतें जो चाह रही हैं जंग हो।
आप अंदाजा करें, एक वो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और यहाँ पर उसने स्ट्राइक कर दिया है और लेबनान को रुकवा दिया है कतर के कहने पर ईरान को कि आपने हमला नहीं करना। उन्होंने कहा अच्छा हम हमला नहीं करते कल रात को, और आप देख रहे हैं इन्होंने कल रात को खुद हमला कर दिया। इसका क्या मतलब है? इस सारी सूरत हाल को दो चीजों से आप देखें। उसका ये मतलब है कि बड़ी क्लियर डिवीजन है इजराइल की गवर्नमेंट में, एक चाह रही है मुज़ाकरात, एक चाह रहे हैं स्ट्राइक। जब मुज़ाकरात होते हैं तो साथ ही स्ट्राइक कर देते हैं। आपको याद नहीं अफगानिस्तान में क्या हुआ था ट्रंप के दौर के अंदर? ट्रंप अफगान तालिबान को बुलाना चाह रहा था व्हाइट हाउस के अंदर, और व्हाइट हाउस में बुलाना था डेविड कैंप, और पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी मुलाकातें थी। तो आप ये सोचें कि इन्होंने व्हाइट हाउस बुलाकर उनसे डील और फाइनलाइज करनी थी, उससे पहले अमेरिका की ही फौज के अंदर से उन्होंने एक हमला करवा दिया, और हमला खुद करवा दिया अफगानिस्तान में अपनी फौज के ऊपर सारा कुछ, और नाम लगा दिया अफगान तालिबान का कि इन्होंने किया है, और कहा नहीं जो अब लड़ाई होगी तो ट्रंप ने कहा ठीक है जी मारो फिर इनको। बाद में ट्रंप को पता चला नहीं ये तो दो नंबरी है। ये आप सोचिए इसमें 2-3 साल डिले हो गए। ये इस तरह की सूरत हाल होती है कि उधर कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनको कह रहे हमला नहीं करना, पीछे से उन्होंने हमला कर दिया। तो आयतुल्ला अली खामनाई को चाइना की जानिब से भी क्लियर ग्रीन सिग्नल है, रूस की ईरान के पास अब टाइम थोड़ा है, इसराइल के पास भी टाइम थोड़ा है। ये ना हो कि ईरान उधर से हमला देर करता रहे, उधर से इसराइल जाकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा दे। कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, ईरान को रोका जा रहा है। वो फ्रांस कॉल करता है, कभी बरतानिया कॉल कर रहा है, कभी को फलाना मुल्क कॉल कर रहा है, कभी कतर कॉल कर रहा है, और कह रहे हैं ईरान को आपने हमला नहीं करना, आपने नहीं हमला करना। और आप सोचें इसराइल ईरान को पैगाम दे रहा है कि मैं तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ाने वाला, उसको रोकते हैं आपने हमला नहीं करना, रात को लेबनान पर हमला कर दे। यानी आप सोचें ये दुनिया के अंदर आपने कभी कोई ऐसी कौम देखी है? क्या मतलब है इसका? वो जंग चाह रहे हैं। इसीलिए आयतुल्ला अली खामनाई को बड़ा क्लियर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि शायद अब बस हो गई है, अब हमले के अलावा कोई चारा नहीं। और ऐसा लग रहा है कि ये सम अप होने वाला मामला लास्ट मोमेंट्स है इसके, क्योंकि हमास ने डील रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये बकवास तमाशा कि नहीं हमारी फौज रहेगी, तुम्हारा क्या काम है? तो वो उन्होंने डील रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? तो ईरान अब देर करे इससे पहले कि ईरान की फैसिलिटीज उड़ा दी जाए और बाद में वो लोग पछताते फिरे, क्योंकि इजराइल ने जंग करनी है। आप हमला करें ना करें, जब यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर